नमस्कार, भारत 24 देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एक मुलाकात पर दुनिया की नजर थी, जिस मुलाकात में 35 मिनट तक सब कुछ सही चला, लेकिन आखिर के 10 मिनट की बातचीत में बात बिगड़नी शुरू हो गई। और ये बात इतनी बिगड़ी कि अब दुनिया एक बड़े युद्ध की दस्तक से दहशत में है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात के बारे में। जेलेंस्की आए तो थे कॉम्प्रोमाइज करने, ट्रंप के साथ एक सौदा करने, लेकिन उनके तेवर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पारा हाई कर दिया। आलम यह हुआ कि न तो सौदा हुआ और जो थोड़े बहुत संबंध अमेरिका यूक्रेन के बीच बचे हुए थे उनमें भी खटास आ गई। आखिर के 10 मिनट की हॉट टॉक में किस तरह से हर सेकेंड व्हाइट हाउस का माहौल गर्माता गया, पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की को यह बताते हुए आगाह किया कि पुतिन के मन में उनके लिए बेहद नफरत है, तो उन्होंने अपनी डील पर कहा कि वो चाहते हैं कि डील हो, इसके लिए उन्हें सख्त होना पड़ेगा। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बोलते आए, इसी का नतीजा ये हुआ कि पुतिन ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। हमने जो बाइडेन का रास्ता देखा है, अमेरिका को एक अच्छा देश बनाने के लिए हमें डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना होगा, और यही राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। For 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. इसके जवाब में जेलेंस्की ने कुछ ऐसा कहा जिससे बात बिगड़नी शुरू हो गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, कोई पुतिन को रोक नहीं पाया। पुतिन ने हमला किया, अधिकार जमा लिया, कब्जा किया, लोगों को मारा। 2014 से 2022 तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। पुतिन ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया। जेलेंस्की ने कहा कि इतना सब कुछ हो गया और अमेरिका अभी भी डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. That people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? जेलेंस्की की ये बात अमेरिका को अखर गई। फिर क्या था? अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने इसे अमेरिका का बड़ा अपमान बता दिया। जेडी वेंस ने कहा कि यूक्रेन खुद अपने लोगों को जबरदस्ती जंग लड़ने के लिए भेज रहा है। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? इसके बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के इस स्टेटमेंट पर कहा कि वो पुतिन के साथ जंग में अकेले लड़ रहे हैं, जिस पर ट्रंप ने उन्हें मूर्ख राष्ट्रपति तक कह दिया और कहा कि हथियार के बगैर, खास करके यूएस के हथियारों के बगैर यूक्रेन जंग में कुछ दिन तक भी टिक नहीं पाता।
In this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say तो कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 10 मिनट में ज़ेलेंस्की ने खुद यूक्रेन की तबाही की एक और स्क्रिप्ट लिख डाली। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस के बाद अमेरिका ने बड़ा फैसला ले लिया है। अमेरिका ने यूक्रेन की आर्थिक मदद बंद कर दी है, सैन्य मदद भी रोक दी है। यूक्रेन की सभी आर्थिक और सैन्य मदद बंद हो चुकी है। व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियली ये जानकारी दी गई, जो कि एक्सपेक्टेड भी थी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस तरह की परिस्थितियां ओवल हाउस में, व्हाइट हाउस में दिखी हैं, उसके बाद ये बड़ा ऐलान किसी भी वक्त यूएस की तरफ से किया जा सकता है। हालांकि इसके पहले भी ट्रंप यूक्रेन को सैन्य मदद देने के बजाय डील पर ज्यादा फोकस थे, और अब इस बहस के बाद, इस तीखी नोकझोंक के बाद एक बड़ा फैसला यूएस गवर्नमेंट का। और अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है, ट्रंप से बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दिया, कहा मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है, और राष्ट्रपति पद से जो इस्तीफे का सवाल है वो फैसला यूक्रेन की जनता करेगी। जैसे यूएस की जनता राष्ट्रपति चुनने का हक रखती है, उसी तरह से यूक्रेन की जनता को भी राष्ट्रपति चुनने का हक है। तो पिछले 24 घंटे में ट्रंप को 2 बड़े झटके लगे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की से हॉट टॉक के बाद रूस यूक्रेन वार्ता फेल हो गई है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई, जिसका अंत बेहद ही निराशाजनक रहा। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच आखिरी के 10 मिनट में इतनी तीखी बहस हुई, जिसके बाद ज़ेलेंस्की फौरन ही अमेरिका से रवाना हो गए। दूसरी तरफ गजा को लेकर बातचीत भी फेल हो गई है। कुल मिलाकर ये दोनों तस्वीरें ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं, और अमेरिका की रणनीति पर सवाल भी हैं, क्योंकि ट्रंप तो शांति चाहते हैं, ऐसा लगातार वो कह रहे थे, लेकिन वो बीच का रास्ता दोनों ही युद्धों के लिए निकाल नहीं पाए, और उसका खामियाजा क्या होगा, ये सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लगातार। इसी पर चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। विनोद शुक्ला जी, विदेश मामलों के जानकार, मौसमी सचदेव, विदेश मामलों के जानकार, आप दोनों का बहुत स्वागत है। विनोद सर, पहला सवाल आपसे ही, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, खासकर जो कुछ हुआ ओवल हाउस में, उसके बाद अब आगे क्या? एक तरफ हम गोलबंदी देख रहे हैं, तमाम यूरोपियन देश जो हैं वो ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं। क्या ट्रंप अकेले पड़ रहे हैं, या ट्रंप को ये उम्मीद पहले से ही थी कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये मेसअप जो हुआ है ना, वो दोनों तरफ से हुआ है। डिप्लोमेसी में इस तरह से डील नहीं किया जाता है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की के साथ बात कर रहे थे, और ये तरीका भी नहीं होता है। आपको डिप्लोमेसी में डिप्लोमेटिक तरीके से डील किया जाता है, और किसी भी सॉवरेन स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ बात करने का तरीका होता है, वो क्रिमिनल नहीं है कि आप उनको ग्रिल कर रहे हैं। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा जल्दी में है। जो लड़ाई चाहे वो गाजा की हो, चाहे वो यूक्रेन और रसिया की हो, उसको आप एक दिन में नहीं निपटा सकते हैं। आप दबाव डाल करके कुछ चीज़ें जरूर मनवा सकते हैं, लेकिन जब देश के सॉवरेनिटी की बात आती है तो कई बार लड़ाइयाँ बहुत क्रूड फॉर्म में लड़ी जाती है। मतलब मैं ये कहूँ कि लाठी डंडे से लड़ी जाती है, आपको अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ सकता है, वो लास्ट एस्पेक्ट होगा किसी भी लड़ाई का। लेकिन ज़ेलेंस्की का जिस तरह का एटीट्यूड था, उससे लग रहा था कि वो लड़ेंगे। अब एक इसका तीसरा एस्पेक्ट ये है कि ज़ेलेंस्की निश्चित तौर पर यूरोपियन जो यूनियन है या यूरोप के देश हैं, उनके हाथ में खेलते हुए मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। उनको अपने इंटरेस्ट को
प्रोटेक्ट करने के लिए अगर थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं तो किया जाना चाहिए। डिप्लोमेसी में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसी तरह की चीजें होती हैं। उनको ये लग रहा था कि शायद वो रशिया से लड़ करके या उनको यूरोपियन सपोर्ट के कारण वो रशिया के साथ निश्चित तौर पर अगर यूरोपियन यूनियन या जो नाटो जिसको बोला जा रहा है उनका सपोर्ट नहीं होता तो रशियन ऑनस्लॉट को इतने दिन तक विथस्टैंड नहीं कर पाता यूक्रेन, लेकिन वो हुआ। तो ये तीनों चीज है, इन तीनों चीजों को जेलेंस्की को खुद डील करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन तीनों में असफल हुए हैं। लेकिन ये जो तरीका अमेरिका अपना रहा है वो तरीका भी दुरुस्त नहीं है। उसके लिए भी थोड़ा और सिविलाइज्ड, मतलब ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा और कॉशस तरीका, थोड़ा और बेहतर तरीका हो सकता था इस मामले को निपटने का, और होना चाहिए। गाजा को लेकर के अभी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई भी वॉर जो है उसको डील करने का, खत्म करने के लिए जो एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर बात करना चाहिए उनको बहुत सुलझे तरीके से डील करना चाहिए। ठीक। प्रेसिडेंट को स्टूपिड प्रेसिडेंट कहना ये मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है। किसी भी सॉवरेन स्टेट्स के लोग, स्टेट के लीडर्स आपस में इस तरह से नहीं बात करते, और ना ये युद्ध रोकने का तरीका है। इसमें दोनों को मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। जेलेंस्की बड़े देर से गलती कर रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ वो दैट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। जी सर। मौसमी जी, क्या ये ट्रंप पर एक कमिटमेंट का दबाव है जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किया, जो लगातार कह रहे थे कि 100 दिन में दोनों वोट्स को वो खत्म करा देंगे, उस दबाव का ये नतीजा है क्या? रहा है कि वर्ल्ड पूरा ऑर्डर बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, और ट्रम्प का जो मैं शुक्ला सर से बिल्कुल सहमत हूँ। प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो ये एटीट्यूड है, डील पॉलिसी, ये जो हर कंट्री के साथ डील डील डील, ये कुछ ज्यादा हो गया है। अब पीस, इट इज नॉट लाइक आज आपने डिमांड किया आज पीस मिल जाएगा। सो ये जो डील पॉलिसी है, मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी भारी पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी जो वहां पे बोला, मैं वापस आता हूं, एक बड़ी खबर, एक अहम जानकारी, उसी के बाद वापस आपके पास ही आएंगे हम। यूक्रेन के राष्ट्रपति को ट्रंप से बहस करने का खामियाजा तो भुगतना पड़ ही रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस के बाद व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया, ये कहा गया। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक की बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि बहस के बाद यूक्रेन के डेलीगेट्स ओवल ऑफिस से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए। अमेरिकी टीम वहीं रुकी रही। इस दौरान ट्रंप ने उपराष्ट्रपति वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और एनएसए माइक वॉल्ट्ज से भी बातचीत की है। और उसके कुछ ही घंटे बाद हमने देखा कि यूएस की तरफ से दरअसल ये फैसला लिया गया कि सैन्य मदद और आर्थिक मदद दोनों नहीं दी जाएगी यूक्रेन को। मौसमी जी, इस पर कमेंट और जो बात आप रख रही थी वो पूरी करिए। बिल्कुल, आप देखिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी ही शुड हैव बीन वेरी वेरी केयरफुल विद हिज वर्ड्स, जो ट्रम्प को पिंच कर गया। जैसे उन्होंने कहा कि डे 1 से यूक्रेन अकेले ही लड़ रहे, तो इसीलिए ट्रम्प ने उन्होंने गिनवा दिया कि $350 बिलियन जो दिए थे विदाउट अमेरिकन हेल्प या अमेरिकन वेपन्स एंड लाइक असिस्टेंस, आप ये नहीं जीत पाते या वॉर कंटिन्यू नहीं कर पाते 3 साल से। सो बोथ वेज कहीं ना कहीं वो है। अभी देखिए अमेरिका का जो स्टैंड है, सडनली उन्होंने फाइनेंशियल एड ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है, एंड इनफैक्ट आई थिंक सैटेलाइट जो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूक्रेन, जो सैटेलाइट इनपुट यूक्रेन यूज कर रहे थे कम्युनिकेशंस के लिए, सारे मैसेजेस के लिए, वो बहुत भारी पड़ेंगे यूक्रेन के लिए। अभी ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दिखाया कहीं ना कहीं विद द सपोर्ट ऑफ नाटो और यूरोपियन कंट्रीज, ईयू के, बट ये देखना पड़ेगा जो यूरोपियन जो ये असिस्टेंस दे रहे या वर्ड्स दे रहे कि हम आपके साथ है, वी सपोर्ट यू, ये सिर्फ फाइनेंशियल एड है, क्या वो मैन पावर एड जो है वो दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तो कब तक दे पाएंगे, कब तक ये वॉर चलेगा? सो इट इज अ बिग क्वेश्चन नाउ। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूक्रेन एक्चुअली गैम्बल कर बैठे या जज्बाती हो गए हैं। डिप्लोमेसी से बात जो हल कर सकते हैं, आई थिंक ये फायर अप हो गया है दोनों तरफ से। अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि भारी तो अमेरिका पे भी पड़ेगी, बट यूक्रेन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या वो अश्योर है, सर्टेन है कि नाटो पहले देखिए वॉर शुरू की, नाटो ने उनको लालच दिया, उसी लालच में लाइक दैट कॉन्फिडेंस मेड हिम टू फाइट। बिल्कुल। बट
थोड़ा डिप्लोमेसी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत भावुक होके एंड एज अ लीडर जो डिप्लोमेसी यूज करना चाहिए, मुझे लगता है प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे यहाँ पे। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल नाउ। विनोद सर, क्या यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय देशों की मदद से जेलेंस्की वॉर को आगे बढ़ाने में सक्षम है? उतनी मदद यूरोप कर सकता है अमेरिका के बिना? देखिए, किसी दूसरे के भरोसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मान लीजिए बहुत सारी सुविधा, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट्स या आर्म एमिनिशंस नाटो जो है वो दे देगा, लेकिन अल्टीमेटली लोग तो आपके मारे जा रहे हैं ना, लैंड आप कंसीड कर रहे हो, और उसके अलावा आपका इकोनॉमी पूरी चौपट हो गई है। इंडिया के साथ आपका या बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड था, वो सब बैठा हुआ है। तो आपको अगर नाटो देश या यूरोपियन कंट्रीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो किस मतलब किस कॉस्ट पर आपको वो सब मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये तो एसएस जेलेंस्की को करना पड़ेगा ना, अपना इंटरेस्ट, अपने देश का इंटरेस्ट तो उनको समझना पड़ेगा। वो क्या इस वार से जो फायदा दिख रहा है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए आयुष जी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि यू आर ड्रैगिंग द वर्ल्ड, मतलब यू आर ड्रैगिंग वर्ल्ड टू थर्ड वर्ल्ड वार। मतलब ये कि वो किसी न किसी तरह से उसमें दो चीजें हैं, या तो उनको धमका रहे हैं कि आप सुधर जाओ, सीज फायर करो, या वो इसमें किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होंगे, किसी न किसी तरह से। तो ये किसी भी उसे ने वॉर कभी भी किसी उसमें ठीक नहीं होता है। आप देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह देता हूं, भारत के चारों तरफ प्रॉब्लम है। मतलब पहले पाकिस्तान था, चाइना था, अब तो बांग्लादेश भी हो गया है। नेपाल हमारा बहुत पुराना है, लेकिन वो हमेशा नाराज ही रहता है। लेकिन हम वॉर अवॉइड करते हैं ना, ज्यादातर सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। वॉर शुड ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन, लेकिन जेलेंस्की जो है वो उनको ये पहला ऑप्शन दिख रहा है, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर वो यूरोपियन कंट्रीज के प्रभाव में दिख भी रहे हैं, तो उनको अपने डिसीजन को रिविजिट करना चाहिए। कम से कम टेम्पररी कुछ चीजों को पहले दुरुस्त करके फिर वो करना चाहिए। अननेसेसरी सिवाय तबाही के पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट लड़ाई कर करके तबाह हो गया है, और ये पड़ोस का मतलब उसी रीजन के आसपास का मामला है। तो इनको वो करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस में ज्यादा दिख रहे हैं, उनको लग रहा है कि यूरोप हमारे साथ खड़ा है। लेकिन ये जो बात यूरोपियन यूनियन, नाटो या यूरोपियन कंट्रीज के साथ है, इनमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन पर यूएस का इन्फ्लुएंस है, और यूएस के दबाव में वो लोग बैक आउट कर जाएंगे। तो वो एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए कि जैसा अभी बात हो रही थी कि ग्लोबल ऑर्डर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव में बहुत सारे और फैक्टर्स काम करने लगे हैं, जैसा अभी मैडम कह रही थी। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में जहां अभी गाजा या आसपास के इलाके वाला मामला है, चाहे ये मामला है। युद्ध को लेकर के सबको बहुत चौकन्ना रहना चाहिए और बहुत सोच समझ करके उस पर काम करना चाहिए। इसमें सिवाय डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं होता है। इकोनॉमी बर्बाद होती है, और दूसरे के दबाव में तो लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये घर गली का भी कॉन्सेप्ट होता है, आप ग्लोबल लेवल पर तो छोड़ दीजिए। ठीक है सर, लौटते हैं इसी पर। ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान पत्रकार के सवाल पर ट्रंप ने वो जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया। पत्रकार ने ट्रंप से पूछा था कि पुतिन अगर पीस डील तोड़ दें तो क्या होगा, तो उस पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर आपके सिर पर कोई बम फोड़ दे तो क्या होगा। ट्रंप ने कहा कि वो नहीं जानते कि अगर पीस डील टूटेगी तो क्या होगा, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि पुतिन उनका बहुत सम्मान करते हैं। ये जो रुख है ये बेहद अहम था। और जब जेलेंस्की बाहर निकले उस वक्त की तस्वीरें। मौसमी जी, अब वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही, क्या वेस्टर्न वर्ल्ड और यूरोप में भी एक दो फाड़ दिख रहा है, और इसका असर क्या होगा वर्ल्ड डिप्लोमेसी पे, वर्ल्ड ऑर्डर पर? देखिए, ये दो भाग तो दिख रहे हैं, लेकिन अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। इवन आप अभी देखिए, यूरोपियन जो कंट्रीज है वो भी कहीं ना कहीं क्राइसिस में है। आप डेट्स में देखिए, यूरो क्राइसिस है, हर जगह पे कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज खुद ही क्राइसिस में है। इसीलिए ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है कि कब तक यूक्रेन को सपोर्ट कर पाएंगे, वो असिस्ट कर पाएंगे। यूक्रेन इज रनिंग आउट ऑफ मैन पावर, यूक्रेन इज रनिंग आउट ऑफ गैस,
यूक्रेन अभी सैटेलाइट जो है वो भी अमेरिका विड्रॉ कर रहे हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज खुद ही एक क्राइसिस में है। तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की को बहुत सोच समझ के स्टेप आगे लेना पड़ेगा कि कब तक करेंगे यूरोपियन कंट्रीज उनको असिस्ट, नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली विदाउट अमेरिकन असिस्टेंस मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो एंटायर वर्ल्ड ऑर्डर 2 हाउस में दिख रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये कि यूएस के बिना एड के आखिर ज़ेलेंस्की इस वॉर को कहां तक ले जा पाएंगे।